Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 5 Friction. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 5 Friction. Chapter number 5 Friction. Existence of friction. ये जनरल नॉलेज हम पढ़ेंगे. एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन. कंसिडर ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. आपने एक ब्लॉक रखा कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर. द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस. ये इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस. इट्स वेट नंबर 1, नंबर 2 आर द रिएक्शन ऑफ द सरफेस. भाई दो चीज़ें इसको प्रेक्ट कर रही हैं. एक इसका वेट है और एक इसका रिएक्शन है. एक इसका वेट है और इसका क्या रिएक्शन है. इसकी वजह से रिएक्शन और वेट की वजह से भैया ये क्या जी इक्विलिब्रियम में है. एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इक्विलिब्रियम में है. सो दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. सो दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर एंड हैंस नो इफेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और वे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं होगा जी. अटैच a string to one end of the body. Attach a string to one end of the body and apply an external force P to the body. We shall see that body does not move unless P is sufficiently increases. Attach a string to one end of the body and apply an external force P to the body. We shall see that body does not move unless P is sufficiently increased. This shows that there exists a retarding force behind it. But this shows that there exists a retarding force behind it. The body which prevents the motion of the body. The body which prevents the motion of the body. This force is called force of friction or simple friction. भाईजान इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपल फ्रिक्शन. भाईजान अगेन देयर इज अ बॉडी और ये इक्विलिब्रियम में है. ये वेट और रिएक्शन की वजह से. ये बॉडी इक्विलिब्रियम है. वेट और रिएक्शन आपस में क्या करें? एक दूसरे को ब्लॉक करें. कंसीडर ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. भाई कंसीडर ए ब्लॉक placed on a horizontal surface. The body is in equilibrium under the action of two forces. By body equilibrium है under the action of two forces. Number 1 its weight. Number 2 are the reaction of surface. By reaction of the surface. by body equilibrium है इन दोनों की वजह से. एक वेट की वजह से और दूसरा रिएक्शन की वजह से. As the body is in equilibrium. Body equilibrium है. So these forces balance each other. So these forces balance each other. Hence no effect in a horizontal direction. Horizontal direction में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Attach a string to one end of the body. Attach a string to one end of the body. जी यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक रिएक्शन और एक वेट. अब देखें एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इक्विलिब्रियम में है. सो दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. लिहाजा फोर्सेस क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. Hence no effect in horizontal direction. कोई डायरेक्शन पे फर्क नहीं होगा. अब यहाँ से बात शुरू होती है. Attach a string to one end of the body. भाई attach a string to one end of the body and apply an external force P to the body. We shall see that body does not move unless P is sufficiently increased. भाई इधर देखें. Attach a string to one end of the body and apply an external force P to the body. We shall see that body does not move unless P is sufficient increase. This shows that there exists a retarding force behind it. But this shows that there exists a retarding force behind it, which prevents the motion of the body. This force is called force of friction. इस force को क्या बोलेंगे? Force of friction or simple friction. जी friction. Let two bodies A and B in contact at point O. भाई दो बॉडीज हैं. एक A है
और एक बाई जन बी है इन कंटेक्ट एट पॉइंट ओ, आर एंड माइनस आर बी देयर एक्शन एंड रिएक्शन। भाई आर और माइनस आर क्या है, म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। Resolve R into two components. R को resolve करें two components, one along common tangent at O and other along the normal line at O। भाई देखें आप इसको दो components में resolve करें, एक along common tangent और एक by the normal reaction। भाई एक along common tangent और एक by the क्या है normal reaction। भाई resolve R into two components, one along the common tangent at O and other along the normal line at O। The component F of R along the common tangent is called force of friction। The component of F of R bar along the common tangent is called force of friction and it prevents the motion of the body। भाई फ्रिक्शन का काम क्या होता है, बॉडी की मोशन को रोकना, एंड इट प्रिवेंट्स द मोशन ऑफ द बॉडी। वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी। भाई दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, एक एक्शन एक रिएक्शन। आप इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, एक अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट और एक अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल। ये जो कॉमन टेंजेंट होगी इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है बॉडी की मोशन को रोकना, और रिएक्शन का काम है पेनिट्रेशन को रोकना। भाई रिएक्शन का काम है पेनिट्रेशन को रोकना। भाई वाइल कंपोनेंट ऑफ आर बार along the normal line is called normal reaction and it prevents the penetration of the bodies, and R bar is called resultant reaction। R bar को आपने क्या बोलना है भाईजान, resultant reaction। भाईजान R bar को क्या बोलेंगे, resultant reaction। once again जो along common tangent होगी भाईजान, जो along common tangent होगी इसको बोलेंगे force of friction, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है बॉडी की मोशन को रोकना, और रिएक्शन का काम है पेनिट्रेशन को रोकना। रिएक्शन का काम है पेनिट्रेशन को रोकना। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है बॉडी की मोशन को रोकना, और रिएक्शन का काम है पेनिट्रेशन को रोकना। भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टू टाइप्स होती हैं, नंबर वन स्टैटिस्टिक्स फ्रिक्शन, दूसरी डायनामिक्स फ्रिक्शन। भाई स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, इज इन इक्विलिब्रियम and is not at the point of sliding, then friction in this case is called statistic friction। भाई then this friction is called statistic friction। When one body is in contact with another, is in equilibrium and the body is not at the point of sliding, then friction in this case is called statistic friction। G, it also has one type, इसकी भी आगे किस्म, limiting friction। When one body in contact with other, when one body in contact with other body and the body is just at the point of motion, body is just at the point of motion and the body is just at the point of motion that is about to move or ready to move, about to move or ready to move, that is friction। That is friction attains its maximum value to prevent the motion of the body, attain its maximum value to prevent the motion of the body। Such friction is called limiting friction। Such friction is called limiting friction and equilibrium in this case is called limiting equilibrium। उस सूरत में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। such friction is called limiting friction and equilibrium in this case is called limiting equilibrium। Dynamic friction, when one body starts moving upon another, when one body start moving upon another, in this case friction also exists। उस सूरत में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी
एंड दिस फ्रिक्शन इज नोन एज डायनामिक फ्रिक्शन। भाई जन इसको क्या बोलेंगे, डायनामिक फ्रिक्शन। एंड द वैल्यू ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और कहता है कि वैल्यू ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन क्या होगा, इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। When one body start moving upon another, in this case friction also exists। भाई उस सूरत में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, दिस फ्रिक्शन इज नोन एज डायनामिक फ्रिक्शन। भाई जन उसको क्या बोलना है आपने, डायनामिक फ्रिक्शन। भाई जब बॉडी मूव कर रही है उसका जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन when one body is just at the point of motion, when one body is just at the point of motion upon another, the friction attains its maximum value to prevent the motion of the body। The friction attains its maximum value to prevent the motion of the body। भाई फ्रिक्शन क्या करेगा, attains its maximum value to prevent the motion of the body। भाई फ्रिक्शन क्या करेगी, attain its maximum value to prevent the motion of the body। The limiting friction always bears a constant ratio with the normal reaction। भाई the limiting friction always bears a constant ratio with the normal reaction। भाई देखें, the limiting friction always bears a constant ratio with the normal reaction। This constant ratio is called coefficient of friction। भाई इस जो कांस्टेंट रेशियो होगी ना, इस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय म्यू। भाई एफ ओवर आर बराबर होगा म्यू। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड करें, वो जो रेशियो होगी ना थोड़ा सेम होगी। अगर बॉडी हल्की है, बॉडी वजनी है, ये आंसर हमेशा सेम होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो एफ बराबर होगा म्यू आर के, इधर मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई जन इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई जन इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई जन इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, भाई जन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, let two bodies have a rough contact at the point O। Well, let two bodies have a rough contact at point O। Let R bar be the resultant reaction। R bar का the resultant reaction। F be the force of friction and R be the normal reaction। भाई F क्या force of friction, R क्या normal reaction। भाई जन let R bar makes an angle theta with R। फर्ज कर लें R bar भाई जन क्या बनाता है, एंगल थीटा विद R। भाई देखें ये बॉडी है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये रिजल्टेंट। भाई इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एफ और एक आर। ये अलोंग कॉमन टेंजेंट होगा और ये नॉर्मल होगा जी। आर बार इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। भाई आर बार का आर के साथ एंगल क्या है, थीटा। अब टेंजेंट थीटा, अब अगर आप इस फिगर से देखें, भाई जन इस फिगर से देखें, मैंने आर इधर शो कर दिया, आर बार इधर शो कर दिया, इसके दरमियान थीटा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बी फ्रॉम फिगर ये अगर एफ है तो ये भी एफ होगा। एफ ओवर आर क्या होगा, टेंजेंट थीटा। एफ ओवर आर क्या होगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इंटू आर बराबर होगा एफ के जी। कहते हैं एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस। भाई एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा आल्सो। भाई जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी तो भाई ये एंगल भी इंक्रीज करेगा। एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ थीटा आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन देयर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू आर। उस वक्त जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो म्यू आर होगी। द वैल्यू ऑफ थीटा is also maximum, the value of theta is also maximum से लैम्डा। उस वक्त जब ये मैक्सिमम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको भाई जन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ आपको पता है, वी नो एफ म्यू आर की। कब होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, लैम्डा के। तो वी नो टेन थीटा बराबर एफ ओ आर। यहाँ पे लैम्डा पुट करोगे तो भैया यहाँ पे म्यू आर कैंसिल। तो भाई म्यू बराबर होगा टेन लैम्डा। भाई जन म्यू किसके बराबर होगा, टेन लैम्डा के। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, म्यू बराबर है टेन लैम्डा के। भाई जन म्यू बराबर है टेन लैम्डा के। भाई जन म्यू बराबर है टेन लैम्डा के। आगे भाई जन के लॉज ऑफ फ्रिक्शन। भाई जन लॉज ऑफ फ्रिक्शन,
भाई पहला ला है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई कहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरह बॉडी मूव करेगी फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई जिस तरह बॉडी मूव करेगी फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राई टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ द बॉडी। भाई जन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, ट्राई टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ द बॉडी। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है ट्राई टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ द बॉडी। अगला व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इज जीरो। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए देन सच ए कांटेक्ट इज कॉल्ड रफ स्मूथ कांटेक्ट। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए बिटवीन टू बॉडी जीरो, देन सच ए कांटेक्ट इज कॉल्ड स्मूथ कांटेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ कांटेक्ट। When the force of friction between two body is not zero, जब force of friction zero ना हो then such a contact is called rough contact। then such a contact is called rough contact। भाई अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, भाई अगर फ्रिक्शन का हो जाए जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं स्मूथ कांटेक्ट। अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो तो उसको बोलते हैं रफ कांटेक्ट। भाई अगर फ्रिक्शन जीरो हो दो बॉडीज के दरमियान तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ कांटेक्ट। अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो तो उसको बोलते हैं रफ कांटेक्ट। भाई अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो उसको बोलते हैं स्मूथ कांटेक्ट। अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो तो उसको बोलते हैं रफ कांटेक्ट। भाई अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो उसको बोलते हैं स्मूथ कांटेक्ट। अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो तो भाई उसको बोलते हैं रफ कांटेक्ट। जी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इक्वल होगी टू दैट ऑफ द फोर्स tending to produce the motion of the body। by tending to produce motion in a body। भाई कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, इक्वल होगी उस फोर्स के जो भाई बॉडी की मोशन को प्रोड्यूस करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू दैट ऑफ फोर्स टेंडिंग टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। भाई वो जो मोशन पैदा होगी ना उसके क्या होगी, फोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। केस 1 कहता है इफ़ ए पार्टिकल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइन प्लेन अंडर इट्स ओन वेट। इफ़ ए पार्टिकल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइन प्लेन अंडर इट्स ओन वेट। कहता है एक पार्टिकल लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, इनके जस्ट रेडी टू स्लिप ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अंडर इट्स ओन वेट। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करी, सिर्फ इसका वजन ही काफ़ी है। द इंक्लिनेशन देन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जी आपने साबित करना है इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इक्वल होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। जी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा अगर वो नेगेटिव भी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। भाई इफ़ अ पार्टिकल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइन प्लेन अंडर इट्स ओन वेट then inclination of the plane equal to the magnitude of angle of friction। जी we have inclined plane, इसका एंगल अल्फ़ा है। जी इसका एंगल क्या जी, अल्फ़ा। ये वेट है, ये डाउनवर्ड होगा, W बराबर होगा mg के। ये जब इधर आएगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगी म्यू आर, क्योंकि F किसके बराबर है, म्यू आर। ये रिएक्शन होगा जी, ये रिएक्शन ऑफ प्लेन होगा जी। ये एंगल अल्फ़ा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फ़ा। भाई दिस इज इंक्लाइंड प्लेन ए बी मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद हॉरिजॉन्टल, वेट डाउनवर्ड आएगा, ये एंगल 90 होगा जी, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा जी। जे जब नीचे आएगा तो फ्रिक्शन इस तरफ और रिएक्शन ऊपर जी, और वेट हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा जी। इधर देखें ये इंक्लाइंड प्लेन ए बी है, इसका एंगल अल्फ़ा है जी। भाई जन ये वेट है, बॉडी है, इसका वेट डाउनवर्ड जी, और जब ये इधर आएगा तो फ्रिक्शन इस तरफ जी, और ये रिएक्शन होगा जी। ये एंगल 90 और ये 90 माइनस अल्फ़ा।
सोल्यूशन में लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये थ्योरी है, ये जस्ट फिगर को डिस्कस किया यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको जिस तरह मर्ज़ी अपने अल्फाज में एक्सप्रेस कर दें। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m placed on a rough inclined plane AB of inclination alpha. By let a particle of mass m placed on a rough inclined plane AB of inclination alpha. Since the particle is in limiting equilibrium, by particle क्या limiting equilibrium है under its own weight. Therefore, limiting friction mu r will act behind the direction of motion of the body. And normal reaction R is perpendicular to it, and normal reaction R is perpendicular to it, वो प्लेन के ऊपर perpendicular है जी। once again I repeat जी, if a particle be in limiting equilibrium, particle limiting equilibrium में फिसलने वाली हालत में है, just ready to move on an inclined plane, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अंडर इट्स ओन वेट, अपने वजन की वजह से। आपने क्या साबित करना, देन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, जो इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन होगा इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लैम्डा से शो करते हो, यानी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्डा साबित करना है। इंक्लिनेशन है अल्फ़ा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है लैम्डा, और दोनों को क्या साबित करना, इक्वल। अच्छा जी, ये जो है ना, ये दो लाइनें अगर आपको क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन और इसके ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह के हल हो जाएंगे। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, भाई कहते हैं रिजॉल्विंग फोर्सेस रिजॉल्व करना अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, भाई ए बी के अलोंग और भैया परपेंडिकुलर टू ए बी, भाई रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने फिगर को अपने हिसाब से सीधा कर दिया जी, म्यू आर इस तरफ, आर ऊपर, और वेट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब देखें, ये होता है एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये सारी फोर्सेस को हमने अलोंग एक्स रिजॉल्व करना और ये सारी फोर्सेस को हमने अलोंग वाई एक्स रिजॉल्व करना। तो क्या होगा, म्यू आर, इसका एंगल क्या, ज़ीरो, म्यू आर कॉज ऑफ ज़ीरो जी, म्यू आर कॉज ऑफ, और भाई जाने ये क्या आर, इसका एंगल क्या है विद एक्स एक्सिस, आर कॉज ऑफ 90, भाई म्यू आर कॉज ज़ीरो, आर कॉज ऑफ 90। अब एम जी का एंगल बन रहा है ये वाला, एम जी कॉज ऑफ दिस एंगल, और वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव। और सिस्टम चूँकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो भाई कैपिटल एक्स इसके बराबर होगा ज़ीरो के, कैपिटल एक्स किसके बराबर होगा, कैपिटल एक्स से मुराद है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, क्या होगा, ज़ीरो जी। सिमिलरली ये क्या होगा, म्यू आर साइन ज़ीरो, आर साइन 90, एम जी साइन 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव जी, इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। अच्छा भाईजान, इनको हल करने के ना कई मेथड्स होते हैं जी, भाई इनको हल करने के कई मेथड्स होते हैं। मसलन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी। तो ये है कि मेरे पास मैं इस स्टाइल से आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा जी। म्यू आर कॉस ज़ीरो, आर कॉस 90, भाई म्यू आर का एंगल क्या है अलॉन्ग विद ए बी, ज़ीरो, आर का एंगल क्या है 90, और एम जी चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में, एम जी कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में कॉज का होगा नेगेटिव, और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो भाई आंसर का होगा ज़ीरो जी। इसी तरह म्यू आर साइन ज़ीरो, आर साइन 90, और एम जी साइन 90 माइनस अल्फ़ा, और थर्ड क्वाड्रेंट में भैया क्या होगा जी, आंसर ज़ीरो होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। और चूँकि बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम, तो भाई इनका कैपिटल एक्स भी ज़ीरो और कैपिटल वाई भी ज़ीरो। कैपिटल एक्स से मुराद है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, और कैपिटल वाई से मुराद है सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। भाई ये दो लाइनें बस इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन की ना जान है जी। देखें हमारे पास ये ए बी था, मैंने इसको सीधा कर दिया जी, तो ये एक्स एक्सिस बन गया, तो ये क्या होगा अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में भाई देखो ना, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और एंगल क्या है 90 माइनस अल्फ़ा जी। भाई एंगल हमेशा बनाना है एक्स एक्सिस के साथ जी, एंगल बनाना, ये लाइन हमारे क्या है, ये एक्स एक्सिस जी,
एंगल हमेशा बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ। नो देखें ए बी, ये म्यू आर इस तरफ था अलॉन्ग ए बी, आर इसको परपेंडिकुलर था और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया था एम जी। तो क्या होगा म्यू आर कॉस 0, आर कॉस 90 और एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो आंसर का इक्वल टू 0। इसी तरह म्यू आर साइन 0, आर साइन 90 और एम जी साइन 90 माइनस अल्फा, थर्ड में साइन का होगा नेगेटिव। नो प्लीज़ अब आपको वैल्यूज़ ऑफ क्लियर होनी चाहिए। कॉस 0 1 होता है, साइन कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा जो, साइन 0 का होगा 0, साइन 91 और ये साइन 90 माइनस अल्फा कॉस ऑफ अल्फा जो। वी हैव दिस, इनको ज़रा सीधा करेंगे। अब इनको डिवाइड करते हैं भाई, जब इनको क्या करें डिवाइड कर दें तो म्यू बराबर होगा टेन लैम्डा अल्फा के जी, बट म्यू किसके बराबर था जी, टेन लैम्डा के। भैया एट द स्टेज ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम म्यू किसके बराबर होगा टेन लैम्डा के जी। दोनों को कंपेयर करें, अब टेनर को उड़ा दें तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा लैम्डा के। अल्फ़ा क्या था इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन और लैम्डा से क्या मुराद है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दोनों आपस में क्या है इक्वल टू, ये हमने साबित करना था। नाउ फाइंड द लीस्ट फोर्स, फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल अप ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन। वे कहता है लीस्ट फोर्स निकालें टू ड्रैग ए पार्टिकल अप, पार्टिकल को ऊपर फेंकने ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन, एक रफ इनक्लाइन प्लेन के ऊपर से। भाई फाइंड द लीस्ट फोर्स, भाई लीस्ट का मतलब है कम से कम, या यूँ कह लें फाइंड द फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल अप ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन। एक इनक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर पार्टिकल को खींचना है तो कुव्वत निकालें, फिर उस कुव्वत की लीस्ट फोर्स निकालें। भाई फोर्स लीस्ट होनी चाहिए। भाई पहले हम फोर्स निकालते हैं फिर हम उसको लीस्ट कर लेंगे। भाई फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल अप ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन। भाई ऊपर ऊपर आपने उसको खींचना चाहिए। भाई देखें ये हमारे पास इनक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, हमने फोर्स पी लगाई ऊपर की तरफ। याद देखें जब भी कोई फोर्स लगानी है तो एंगल बना के लगानी है, अनलेस को उसने हमें कोई स्पेशल हदायत ना दी हो। ये रिएक्शन इस तरफ होगा, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन इस तरफ, और वेट हमेशा क्या होगा डाउनवर्ड। ये एंगल अल्फ़ा है, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। भाई जन ये अल्फ़ा, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये आपने थीटा सपोज किया जी, क्योंकि ये आपका 90 है ना, दो एंगल मौजूद हो, तीसरा एंगल किस तरह निकलेगा 180 में का सब्ट्रैक्ट सामने निकाल लो। नो अब आपने ए बी को एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर किया। भाई ए बी को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पी पहले क्वाड्रेंट में आ गया, आर ऊपर आ गया, भाई म्यू आर 180 के लॉन्ग चला गया, और ये एम जी 90 माइनस अल्फा बना रहा है विद एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट दूसरा एंड थर्ड क्वाड्रेंट जी। फिगर को डिस्कस किया, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ए बी ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। भाई उसने कहा एक पार्टिकल जिसका मास है प्लेस ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन को ऊपर रखा ए बी के ऊपर ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। इसका इंक्लिनेशन क्या भजन अल्फा जी, भजन का इंक्लिनेशन क्या अल्फा। लेट पी बी द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी मेकिंग एंगल थीटा विद ए बी, विद प्लेन ए बी। भाई आपने पी फोर्स लेट की जो मेकिंग एंगल थीटा विद प्लेन ए बी, सो दैट द बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप। भाई बॉडी क्या जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कहता है भाई बॉडी जब इक्विलिब्रियम होगी ना, देयर एग्जिस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर बिहाइंड इट, देयर एग्जिस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर बिहाइंड इट। भाई वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगी बिहाइंड इट। भाई देयर एग्जिस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर बिहाइंड इट, भाई उसके अपोजिट क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगी जी। वंस अगेन फाइंड द लीस्ट फोर्स, लीस्ट फोर्स निकालनी है टू ड्रैग ए पार्टिकल अप, पार्टिकल को ऊपर खींचना है ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन, एक इन रफ इनक्लाइन प्लेन। भाई फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल अप ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन, एक रफ इनक्लाइन के ऊपर पार्टिकल को ऊपर फेंकें। भाई वी हैव दिस, पार्टिकल ऊपर फेंकें, यह आपका रिएक्शन होगा और ये फ्रिक्शन होगी, एफ फिजिकल टू म्यू आर होगा। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये एंगल अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा जी। भाई फोर्स पी कितना एंगल बना रही थीटा जी, भाई फोर्स पी कितना एंगल बना रही थीटा। नो वी हैव दिस, आप जरा देखें ये ए बी है, पी पहले क्वाड्रेंट में, आर ऊपर अलॉन्ग वाई एक्सिस,
म्यू आर अलॉन्ग 180 और एम जी इन थर्ड क्वाड्रेंट। जी, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। बजन ये दो लाइनें जो है ना आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। भाई पी का एंगल क्या था थीटा, पी कॉस थीटा, आर का एंगल 90, आर कॉस 90, म्यू आर का एंगल 180 तो म्यू आर कॉस 180 जी। वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, एम जी का एंगल 90 माइनस अल्फा तो एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा। वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस का नेगेटिव और चूँकि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो वजन आंसर का होगा 0 जी। इसी तरह पी साइन थीटा, पी का एंगल क्या है थीटा, आर का एंगल क्या है 90, आर साइन 90, म्यू आर साइन 180 एंड माइनस एम जी साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, चूँकि बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है जी। भाई देखें जो भी फोर्स होगी उसका एंगल देखेंगे। पी का एंगल था थीटा, पी कॉस थीटा, आर का एंगल था 90, आर कॉस 90, म्यू आर का एंगल था 180, म्यू आर कॉस 180 जी। एम जी का एंगल था 90 माइनस अल्फा, एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा। वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस का होगा नेगेटिव। इस तरह पी का एंगल था थीटा तो पी साइन थीटा लॉन्ग वाई एक्सिस, आर का एंगल 90 तो आर साइन 90, म्यू आर का एंगल था 180 तो म्यू आर साइन 180 जी। और एम जी भाई साइन 90 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में भैया एंगल क्या बनेगा जी 90 माइनस अल्फा जी। और चूँकि थर्ड में साइन का था नेगेटिव, भैया ये दो चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो फिर कोई टेंशन नहीं। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 माइनस 1, cos 90 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन 91 साइन 180 0, साइन 90 माइनस अल्फ़ा cos अल्फ़ा। वी हैव दिस। अब आपने इन दोनों को हल करना है जी। आपने क्या किया जी, दूसरी वाली को म्यू से ज़रब दे के ऐड कर दें जी, ताकि आर तो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वी गेट पी कॉमन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, भाई माइनस एम जी कॉमन निकल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और वजन साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। वजन इसको इधर शिफ्ट कर दें भाई, बट म्यू किसके बराबर है, वजन इसको नीचे भेज दें। बट म्यू किसके बराबर, टेनेट अल्फ़ा के, टेनेट लैम्डा। भाई म्यू किसके बराबर, टेनेट लैम्डा, और जो होगा साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा। भाई म्यू किसके बराबर होगा, टेनेट लैम्डा, और जो होगा साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा जी। वजन प्लीज़ पुट हेयर जी, भाई पुट हेयर प्लीज़ टेक एल्शियम। वजन क्या करें, टेक एल्शियम ले लें जी। वजन ये था देखें, ये साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन लैम्डा जी, और ये बनेगा कॉस थीटा कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा। वजन ये एल्शियम कैंसिल जी, ऊपर साइन अल्फ़ा जमा बीटे का फार्मूला, नीचे कॉस अल्फ़ा मनफी बीटे का फार्मूला जी। अब देखें ये हमारी पी निकल आई जी। उसने मांगा पी लीस्ट, लीस्ट कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा जी। भाई पी लीस्ट कब होगी, जब ये क्या होगा जी, टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी पुट इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 1 थी, तो कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। भाई कॉस की हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 1, भाई पी लीस्ट कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1 जी। तो भैया थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 0, थीटा इज इक्वल लैम्डा। देयरफॉर पी किसके बराबर होगा, मिनिमम एम जी साइन अल्फा प्लस लैम्डा इज द लीस्ट फोर्स ऑफ पी जी। भाई इज़ द लीस्ट फोर्स ऑफ पी। अच्छा भाई ये आगे रिजल्ट यूज भी होगा जी, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें ये आपने ना ज़रा ज़हन में रखना है। लीस्ट फोर्स विच ड्रैग द पार्टिकल अप, वो किसके बराबर था, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा। वजन का था एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा जी। भाई लीस्ट फोर्स विच ड्रैग ए पार्टिकल अप ऑन इंक्लाइन प्लेन इज एम पी इज इक्वल एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा जी। जी नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल डाउन द प्लेन। भाई आपने पार्टिकल को क्या करना है, डाउन खींचना। भाई इस केस में फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल डाउन द प्लेन। अब आपने नीचे खींचना, भाई जब नीचे खींचोगे तो एंगल बना के खींचोगे। भाई जब भी फोर्स लगानी है तो एंगल बना के, अनलेस कि उसने कोई आपको हदायत दी ना हो जी। जब ये नीचे आएगी तो फ्रिक्शन इस तरफ, रिएक्शन इस तरफ, और वजन वेट किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। ये एंगल अल्फ़ा, ये 90 तो ये 90 माइनस अल्फ़ा। पी का जो एंगल है थीटा, और भैया म्यू आर आप, क्योंकि एफ किसके बराबर था म्यू आर, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर थी। नो वी हैव, आपने ए बी को एज ए हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर ली। तो भैया बी आर क्या होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस, आर क्या होगा, लॉन्ग वाई एक्सिस। भैया वी इन सेकंड क्वाड्रेंट, पी इन सेकंड क्वाड्रेंट, उसका एंगल थीटा, और एम जी कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, उसका एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब अगेन आई रिपीट,
कहता है फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल डाउन द प्लेन। अब अपने पार्टिकल को डाउन करना है जी, भाई पार्टिकल को ड्रैग करना डाउनवर्ड जी, ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल हमारे पास क्या दिया अल्फा। लेट एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल, फर्ज कर लें एम क्या मास ऑफ द पार्टिकल। लेट पी बी द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी बाय मेकिंग एंगल थीटा विद ए बी, भाई वो ए बी के साथ कितना एंगल में आ रही है, थीटा। व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, जब पार्टिकल को नीचे फेंकोगे, व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, देयर एग्जिस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर बिहाइंड इट, बाई देयर फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जिस तरह बॉडी मूव करेगी फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके हमेशा अपोजिट होगी। रिजॉल्विंग फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, अब रिजॉल्विंग फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, भैया वी हैव दीज टू स्टेप्स। भाई म्यू आर का एंगल क्या था 0, तो म्यू आर कॉस 0, आर का एंगल क्या था 90, आर कॉस 90, पी का एंगल क्या था थीटा, पी कॉस थीटा, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस का था नेगेटिव। एम जी का एंगल था 90 माइनस अल्फा, तो एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और थर्ड क्वाड्रेंट में भाई कॉस का था नेगेटिव। इसी तरह म्यू आर साइन 0, म्यू आर का एंगल क्या था 0, तो म्यू आर साइन 0, आर का एंगल 90 था, आर साइन 90, पी का एंगल थीटा, पी साइन ऑफ थीटा, सेकेंड में ना, सेकेंड में साइन का पॉजिटिव, और एम जी थर्ड क्वाड्रेंट में था, एम जी साइन 90 माइनस अल्फा, और थर्ड में साइन का होता है नेगेटिव। भजन क्या कहा, म्यू आर कॉस थीटा कॉस 0 प्लस आर, सुने ये क्लियर होना चाहिए आपको, दो लाइनें आगे। तो भाई कॉस 0 का होता है 1, कॉस 90 का होता है 0, कॉस 90 माइनस अल्फा बराबर होगा साइन अल्फा का, साइन 0 का 0, साइन 91, और भजन साइन 90 माइनस अल्फा का कॉस ऑफ अल्फा, वी हैव दिस। अब आपने आर को गैप करना है, तो भाई दूसरी वाली को आपने म्यू से ज़रब दे के आप 1 में से सुब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैलकुलेशन कर लें, तो वी गेट दिस। अब आप पी बराबर होगा जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल एम जी, भजन ये बनेगा ना माइनस से सेटिंग करने से बाद म्यू कॉज ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। अब भजन आपको पता है इसको नीचे भेज दो पी एक तरफ, अब बट म्यू किसके बराबर था, टेन लैम्डा, भाई जहाँ जहाँ म्यू होगा वहाँ वहाँ टेन लैम्डा, और टेन लैम्डा होता है साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा जी। प्लीज पुट हेयर टेक एल्सियम, वी गेट दिस, एल्सियम विल बी कैंसिल, ऊपर आएगा साइन अल्फा कॉस लैम्डा मनफी कॉस लैम्डा साइन, साइन अल्फा मनफी बीटे का फार्मूला, और नीचे आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, तो भजन कॉस अल्फा मनफी बीटे का फार्मूला, भजन का कॉस अल्फा मनफी बीटे का फार्मूला जी। इन आर्डर टू फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, भाई ये जो बटा है ना कॉस थीटा माइनस शुड बी मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये कॉस 1 कब होता है, जब एंगल क्या हो 0, यहाँ से थीटा इज इक्वल करेंगे लैम्डा, तो देयर फॉर पी इज़ मिनिमम, वो होगा एम जी साइन लैम्डा माइनस अल्फा, एम जी साइन लैम्डा माइनस अल्फा जी। वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग ए पार्टिकल डाउन द प्लेन। अब आपने पार्टिकल को नीचे खींचना है, और लीस्ट फोर्स भाई वी आर यूजिंग दिस फोर्स पी, अब नीचे खींचना तो भाई एंगल क्या बनाना है हमने थीटा सपोज करना है। जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन इस तरफ, म्यू आर इस तरफ और आर ऊपर, और भाई जनरेट हमेशा डाउनवर्ड, और ये एंगल अल्फा ये 90 माइनस अल्फा। अब हमने इसके लॉन्ग बॉडी को रिजॉल्व करना है, तो हमने इसको एज ए हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लिया, तो म्यू आर इस तरफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आर 90, और भाई जन क्या होगा जी ये पी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और भैया एम जी कहाँ पर चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, एम जी कहाँ पर चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में।